Assalamualaikum. Assalamualaikum. Can you hear me? Am I audible to you people? Hello? Am I audible to you people? Hello? So, we are going to discuss today consumer surplus, concept of consumer surplus. तो बहुत छोटा सा concept है. So, but once we talk about consumer surplus, it is basically, we can say, the additional benefit that a consumer basically gets by purchasing a particular product, particular item, or a particular service. So consumer surplus can be defined as a difference between what a consumer is willing to pay for a commodity and what he actually does pay for it. Simple to understand, consumer surplus is basically the additional benefit that a consumer receives from the purchase of any product, from the purchase of any service. It was the concept devised by the Dupuit, a French engineer, in his paper on the measurement of public works in 1844. So he basically introduced the concept of relative utility, concept as consumers rent, in his pure theory of domestic values. तो ये थोड़ा इसका background है कि जो मतलब once we talk about the consumer surplus, फिर मार्शल ने भी इस पे थोड़ा सा वर्क किया था 1895 में. So you can add these things to the definition of the consumer surplus. So basically, once we talk about the consumer surplus, it is basically the difference between the price willing to pay and actual price you are paying. So consumer surplus is basically the difference between the price you are willing to pay and actual price you pay. So we say the additional benefit. I hope you remember, I hope you are aware about it कि जब हम गाड़ियों का जब फॉर एग्जांपल उसकी जो टायर्स है उनको जब एयर की प्रॉब्लम हो जाती है, हवा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू जस्ट गो एंड विजिट दैट पर्सन जो फिर इसमें फिर जो टायर के जो उसमें जो फिर फॉर एग्जांपल जो एयर को इंसर्ट करता है. सो व्हाट बेसिकली यू पे, यस, how many rupees you are supposed to pay for one tire? No? Can you hear me? Yes. Oh, can you hear me? Oh. Insha, can you hear me? Mansha, can you hear me? Umar, can you hear me? तो गाड़ियों को जब हवा भरते हैं तो बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं. तो कंज्यूम, चूंकि गाड़ी मतलब चाहे 5 लाख की हो 10 लाख की हो, तो गाड़ी को जब मतलब जो टायर्स में जब हवा कम हो जाता है तो फिर आप जाते हैं उस जो उसका जो रिलेटेड पर्सन है, तो उसके पास आप जब जाते हैं तो वो 10-20 रुपए में आपको फिर आपका वो काम कर देता है. बट यू आर रेडी टू पे मोर, एवरीबडी इज रेडी टू पे मोर. अब ये जरूरी नहीं है, इवन यू कैन पे 50 रुपीज, आधे तो देते हैं.
हालांकि 20 रुपए 30 रुपए वो लेते हैं ऑन एवरेज, लेकिन आधे तो उससे भी ज्यादा देते हैं। सो दैट इज द सरप्लस। सो दैट इज द सरप्लस। आपका जो सॉल्ट है, आपकी जो मैच बॉक्स है, बहुत कम कीमत में पड़ती है, बट यू कंज्यूमर इज बेसिकली रेडी टू पे मोर फॉर इवन 1 रुपी, इवन 50 पैसा। So that becomes your surplus. So surplus is basically price willing to pay actual price, and the difference between the price willing to pay. For example, see, जो फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे थे अभी टायर्स का जो हवा भरना है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इज रेडी टू पे 50 रुपीज, बट ही इज सपोज टू पे ओनली 20, सो the surplus is 30 rupees. So 30 is a big amount. So 30 rupees is a big amount. You have so many examples in your life where consumer is sometimes feels, no, I should pay more. I mean, I have paid less to this person. बहुत सस्ता है। कभी कभी इंसान ये भी बोलता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, बहुत सस्ता है, शायद इसको कम नहीं मिला तो ज्यादा देना था। So that is basically the surplus. So once you talk about the consumer surplus, it is again about the satisfaction. It is about again the satisfaction. So you talk about law of diminishing marginal utility, you talk about utility analysis, you talk about consumer surplus, then we talk about the law of equimarginal utility. So you have a law of diminishing marginal utility, and then you have a law of equimarginal utility. Equimarginal utility मतलब ये है कि consumer tries to get maximum possible satisfaction from a particular purchase. So how he will achieve this maximum possible satisfaction from a particular purchase, from a particular service? We have three effects: the law of substitution, the law of economy of expenditure, law of maximum satisfaction. So once you talk about the law of equimarginal utility, what consumer basically believes, he believes in, या कंज्यूमर सरप्लस पे और एक एग्जांपल अगर हम मेडिसिन की ले लेंगे ना, फॉर एग्जांपल एसिलॉक या वो शायद डाइजीन भी है, तो बहुत सस्ते में पड़ते हैं वो जो टैबलेट्स है, वो दवाई बहुत बहुत सस्ते में पड़ती है, एंड कंज्यूमर डेफिनेटली इज रेडी टू पे मोर। एविल टेबलेट और एक है जो कि शायद बहुत सस्ता है, 10 रुपए में शायद वो पैक मिलता है, वो एक स्ट्रिप मिलती है। तो इसी तरह से बहुत सारे आपके जो है जो टैबलेट्स है वो you get them at a very low price. So but the consumer is definitely ready to pay more for those products, for those services. Just I could recapitulate the other examples as well. तो जैसे मैच बॉक्स आपका है, सॉल्ट आपका, या मैंने टायर्स की एग्जांपल दे दी, या दुनिया में जितने भी आपके जो एग्जांपल्स है जहां पे कंज्यूमर रेडी होता है फॉर पेइंग मोर to the retailer, to the person who sells a particular service. So again coming back to the law of substitution, तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इस तरह हो जाती है कि इसका एक इम्पैक्ट है, इसका एक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि सब्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर बिलीव करता है ऑन सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंस कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट है ये महंगा पड़ रहा है तो मैं इसको नहीं लूंगा, आई विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूट, मैं वो प्रोडक्ट ले लूंगा जो थोड़ा इससे सस्ता होगा। सो लेकिन वंस यू टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, यू टॉक अबाउट द इक्विमार्जिनल यूटिलिटीज, मतलब आपको लग रहा है कि ये सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट ए खरीदने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सस्ता नहीं है, you will not purchase it. You will not purchase it because consumer believes, the law of equimarginal utility believes in the law of substitution. मतलब कि जब कंज्यूमर जो है, जब वो दोनों प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अमूल बटर है, अमूल बटर, और दूसरे साइड से आपकी वो और एक बटर थी, मैं भूल गया उसका नाम, कैन एनीवन टेल मी, और भी एक बटर थी, आई कैन नॉट रिकैप्चुलेट इट्स नेम,
Can anyone tell me yes? No? Neutralite? No? Yes? Neutralite? न्यूट्रलाइट भी एक था और एक था वो जो ना वो पर्टिकुलरली उसमें क्या बोलते हैं इसको जस्ट अ मिनट आई विल जस्ट ट्राई भूल जाते हैं मैं भूल गया लेकिन उसमें दैट इज कंप्लीटली वांट्स टू टॉक अबाउट द प्रोटीन या विटामिन एक्सेट्रा सो उसमें फैट नहीं होता उतना तो जैसे भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इसने बहुत सारी जो दी है प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल अमूल फॉर एग्जांपल सो one is to talk about the types of the products you have available in this category so यहाँ पे लेकिन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाएगा न्यूट्रीलाइट फॉर एग्जांपल ले लीजिए या अमूल बटर आप ले लीजिए चूंकि अगर आपको अमूल अगर कस्टमर को लगेगा कि जो अमूल बटर है तो वो महंगी है तो उसको परचेज नहीं करेगा ही विल गो टू न्यूट्रीलाइट हाँ डिफिकल्ट है क्योंकि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो अमूल बटर है अमूल बटर ने पूरा मार्केट कवर कर लिया इट्स वेरी डिफिकल्ट तभी जो है जो दूसरे प्लेयर्स है जो दूसरे मार्केटर्स है वो दे आर ट्राइंग टू ओवरकम अमूल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दी वो तो कंपटीशन पे हम वो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कंपटीशन लेकिन यहाँ पे है कि अमूल ने ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो अमूल ने ही ले लिया है लेकिन on an average what happens with the law of equivalence and utility is कि कंज्यूमर चाहता है कि मैं वो प्रोडक्ट ले लूं जो मुझे सस्ता मिल जाएगा मोस्टली नॉट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स क्योंकि अमूल का टेस्ट मीन दैट इज टोटली डिफरेंट तो वहां पे कंज्यूमर हार जाता है मतलब कंज्यूमर कैनॉट कंट्रोल हिज इमोशंस कैनॉट गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन तो वहां पे कंज्यूमर हार जाता है क्योंकि अमूल ने पहले ही उनको कवर करके रखा है बाकी जगहों पे मतलब जहां पे कंज्यूमर को लगेगा कि नहीं कोई प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट मुझे मिल रहा है तो व्हाई शुड आई गो फॉर द कॉस्टली प्रोडक्ट आई विल गो फॉर द चीपर प्रोडक्ट मोस्टली कंज्यूमर से ही करते हैं जहां पे भी आपको जहां पे भी वी कैन से चलेगा हम ये नहीं बोलेंगे कि हर जगह पे जाएंगे फॉर एग्जांपल कल को ब्रांड्स की बात आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिन एंड यूटिलिटी की बात करेंगे तो ब्रांड्स की बात आ जाती है तो वहां पे मतलब लॉ ऑफ इक्विमार्जिन एंड यूटिलिटी की अपनी लिमिटेशंस है मतलब जैसे हमने अमूल और न्यूट्रीलाइट बहुत कम खाते होंगे जो न्यूट्रीलाइट को खाते होंगे या जो अदर टाइप्स ऑफ बटर है कश्मीरी बटर भी एक है जो आपने सुना है कश्मीरी बटर के बारे में कौशर थन मतलब तथ वन सोद कौशर थन आपने सुना है उसके बारे में हेलो जी सर वो कश्मीरियों के लिए वो लगता है कि शायद अगर उसका प्योर फॉर्म होगा उसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर प्योर फॉर्म होगा ना तो शायद कश्मीरी उसको भी ले सकते हैं या आपका और एक एग्जांपल राइस है मतलब राइस में भी सब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है मतलब एप्पल है आपका जो फेयर प्राइस शॉप से मिलता है जो पंजाब तो हाँ फॉर एग्जांपल लेकिन मैक्सिमम पीपल इन कश्मीर दे गो फॉर द फेयर प्राइस शॉप प्राइस यू नो राइस जो है तो एप्पल जो है एप्पल एक ब्रांड है तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है या आपके अदर टाइप्स ऑफ जो ब्रांड्स है इन एप्पल जो महंगे हैं तो कंज्यूमर मोस्टली गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि भाई मैं जो है महंगा ही ले लूं हाँ कोई कस्टमर ऐसा है कि जो नहीं लेगा
जो जो और उसके जो फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट्स है, कोई ऐसा कंज्यूमर भी होगा, कोई ऐसा भी कस्टमर होगा कि जो खाली एप्पल लेता होगा, वो अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। लेकिन मोस्टली व्हाट हैपेंस विद दिस सोसाइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस सोसाइटी एज वेल। तो कस्टमर अगर एप्पल उसको है, फॉर एग्जांपल एप्पल ब्रांड अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको ले लेगा, ही विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके लिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल कशर तोमुल तो थोड़ा द्रोगी पाम, कश्मीरी चावल जो आपका है, तो हर जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी के लिए जाएगा, बिकॉज पीपल अप्लाई व्हाट, पीपल अप्लाई लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उनके लिए चाहे कश्मीरी चावल हो, चाहे चाहे पंजाबी चावल हो, कोई भी हो, उनके लिए उसमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तभी तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसलिए इंप्लीमेंट हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर के लिए एक भी मार्जिनल यूटिलिटीज है, कंज्यूमर के लिए एक मार्जिनल यूटिलिटीज है। एंड देन लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हर कोई कस्टमर, वंस यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर में यह है कि बेसिकली कस्टमर wants to maximize his expenditure. Customer wants to maximize, but once we talk about the law of equimarginal utility, or we talk about the law of diminishing marginal utility, we're basically talking about the rational customers. So once you talk about the law of economy of expenditure, so this basically sets the tone for law of equimarginal utility. Customer जो कहीं पे भी पैसा खर्च करना चाहता है, तो वहां पे वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, he or she should get maximum benefit. तो अगर आपको कोई आइटम परचेज करना है, you will definitely implement this law of economy of expenditure, कि मैं वो प्रोडक्ट ले लूं कि जहां पे मुझे एक्सपेंडिचर जो मेरा है वो प्रपोर्शनेटली हो to its utility. So economize. We basically go for maximization. We call it maximization. Maximization of the profits. Minimization of the cost. आपने पढ़ा होगा मुझे लगता है linear programming में. Linear programming पढ़ा है? No. जी सर। पढ़ा है ना? जी सर, linear programming पढ़ा है ना? Hello? हेलो सर। Yes, linear programming पढ़ा है ना? जी सर। तो क्या होता है linear programming में, क्या हम करते हैं? सर हमें बस उसका हल्का हल्का आइडिया है, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। linear programming में अगर आपको याद हो, we basically start with the goal. Goal may be maximization of the profits, or goal may be the maximization of the profits, minimization of the cost. जो linear programming का basic जो objective होता है, that objective may be the maximization of the profit, and objective may be the minimization of the cost. Then there are certain constraints, if you remember. Certain constraints for a particular person, for a particular organization, which can hamper this objective of maximization of the profit or minimization of the cost. Similarly, like objective can be, say, for example, you achieve more and more sales. You want to achieve more and more profit. But once you want to achieve more and more profit, there may be a constraint for a particular marketer, for a particular manufacturer. The constraint may be, for example, raw material, the availability of raw material. This may be a constraint. किस प्राइस पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है? अगर ज्यादा प्राइस पे मतलब उसका जो प्राइस है, उसका जो बेसिक प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस है, जो कॉस्ट है ओवरऑल प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगा। तो ये दिस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल मॉडल है, आपने पढ़ा भी होगा, तो कैसे हम फिर उस चीज को अचीव करते हैं। लेकिन इसी तरह एक इंसान जो है, कस्टमर जो है,
वो भी that he also goes for the maximization of the benefits. Whenever rational customer we are talking about, we are not talking about the pro fashion consumers. We talk about a term fashion panorama. Fashion पे ये नहीं लगता है the what we say law of economy of expenditure नहीं. हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो अगर आप अपैरल्स की बात करेंगे, say for example ready-made garments, you definitely will talk about the brands. Can anyone tell me how? No. मुझे प्रॉब्लम है ना, जब तक मुझे स्टूडेंट नहीं बोलेंगे ना वहां से तो मैं आगे नहीं जाऊंगा. दिस इज प्रॉब्लम विद मी. नाउ कैन यू हियर मी? Question report. So can you hear My me? question is, yeah, sure. My question is, if we talk about law of economy of expenditure, we need to talk about the brands. We are taking the example of apparels. We can talk about ready-made garments. Say for example, we can talk about say for example, we talk about Nike, we talk about Adidas, and we may talk about the generic products. We may talk about, I mean, जो आपको फॉर एग्जांपल संडे मार्केट में मिलता है, जो आपको लोकल प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं. Now you want to wear a t-shirt, and you can wear a generic t-shirt, simple. I mean जो ब्रांड नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके पास एडिडास है. या फुटवेयर की बात करिए, आपके पास बाटा है, आपके पास से फॉर एग्जांपल कोई और वुडलैंड है. तो यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो रैशनल कस्टमर है, तो वो किसकी ओर जाएगा? अगर बाटा, वुडलैंड और एडिडास और नाइकी या जनरल प्रोडक्ट्स है, जो जनरल आपके जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, कौन सा लॉ, अगर आप लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कौन सा ज्यादा उसको सूट करेगा? सर जो सस्ता होगा, जो जहाँ पे उसको कम पैसे खर्चने पड़े. नो. हाँ, यहाँ पे भी फिर जब हम जो आपने बोला जो सस्ता है, मुझे नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू बी विद एवरीवन. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वुडलैंड शू लाएंगे ना, राउंड अबाउट 4 years 5 years तो उसमें निकल जाएंगे. ये दिस इज अबाउट द रैशनैलिटी, लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर. मैं वहां पे एक्सपेंडिचर जो है मैं अपना इन्वेस्ट वहां पे कर लूंगा जहां पे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा. हाँ, मतलब वी टॉक अबाउट ये सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. दिस इज इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर. मतलब यू हैव टू इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर्स. अगर आप ब्रांड्स पे फॉर एग्जांपल, लेकिन वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि किसके पास कितना जो है, क्या बोलते हैं इसको, इनकम है. लेकिन मोस्टली जो जनरल ट्रेंड है कंज्यूमर्स में, कस्टमर्स में, वो यही है कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. ये दिस इज द बेस्ट सूटेड फॉर इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर. चाहे आपका कस्टमर क्यों ना गरीब ही हो, कोशिश वो भी करता है कि मैं वो प्रोडक्ट लाऊं जिसमें मुझे टाइम निकलेगा. So in a way we are trying to maximize our utility of the products. Then we have law of maximum satisfaction. इसमें F silent रहा है, पता नहीं कहाँ गया. तो law of maximum satisfaction और law of equimarginal utility ये है कि customers always try to get the maximum satisfaction. तो law of equimarginal utility में भी ये प्रॉब्लम, फिर इसमें भी limitations आ सकती है. जब हम law of substitution की बात करते हैं, मतलब कि हमेशा ये नहीं चलेगा. लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर ये भी शायद हमेशा नहीं चलेगा. लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑलवेज. इट मे नॉट बी पॉसिबल. जो आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है. कभी कभी कस्टमर को लगता है कि नहीं, जो मैंने प्रोडक्ट लिया था शायद मुझे कोई और ही प्रोडक्ट अगर लेते तो मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाती. कोई भी आप प्रोडक्ट ले, ये हमेशा होता है. तो once you talk about particular laws, you talk about law of diminishing marginal utility, वहां पे आपके limitations है. इसी तरह आपके जो
लॉ ऑफ व्हाट वी कॉल इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे भी जो है जो लिमिटेशंस आ सकती है. Every consumer aims at getting the maximum possible satisfaction, and for this purpose, he will substitute the more useful for the less useful thing. So remember this basic rule. Every prudent consumer, मतलब prudent मतलब जो rational consumer है, will try to make the best use of the money at his disposal, at his or her disposal, and derive the maximum satisfaction. So these are the two basic principles of the law of equimarginal utility. That is the maximum possible satisfaction, the substitution effect, prudent मतलब rational consumer, and the maximum satisfaction. लेकिन वहां पे भी कभी कभी जब हम सब्स्टिट्यूशन की, जैसे मैंने भी बोला, सब्स्टिट्यूशन की बात करते तो वहां पे फेल हो जाता है. कंज्यूमर कहाँ से, मतलब न्यूट्रलाइट आपकी एग्जांपल है, कहाँ से भाई आपको, मतलब फॉर एग्जांपल हाउ कैन यू ओवरकम द व्हाट वी कॉल दिस द अमूल बटर. वो तो मुश्किल है ओवरकम करना. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कि जहाँ जिसने पहले ही अपना मार्केट जो है पूरा कंट्रोल करके रखा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर मार्केट, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. उसके बाद हमारा जो और एक सब्जेक्ट है और एक टॉपिक है, that is the factors affecting the location, plant location. तो इस पे आप याद रखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो ये मैंने बुक से लिया है डायरेक्टली. तो इसमें जो आपके फैक्टर्स होते हैं, आपके प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं और सेकेंडरी फैक्टर्स. आई थिंक इट्स वेरी इजी. इस पे उतना टफ नहीं है. मतलब आपकी जो कोई भी फैक्ट्री है, आप कहाँ पे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं. कोई भी आपका फॉर एग्जांपल रिटेल आउटलेट है, सिंपल टू से कोई आपका शॉप है, इसको आप कहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस जो है उसको कहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या फैक्टर्स है जो उसको इम्पैक्ट करते हैं. अगर आप कोई से फॉर एग्जांपल यूनिट इंस्टॉल करना चाहते हैं, tomorrow some of people in this class they may come up with a, we can say, the business plan. They may have some employment generating avenues as well. So what would be the factors that basically have to be examined before starting any business, before identifying any location. So the location factors are important, which can determine the plant location. कहाँ पे start करेंगे, simple to say. Those are the factors affecting the plant location. अगर आपको सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो कहाँ पे आप करेंगे, श्रीनगर. यस, will it be in Srinagar? Yes. Will it be in Srinagar? सर इट डिपेंड्स के लोकेशन कैसी है आपकी. Okay, how? सर क्योंकि नहीं, my question is, अगर मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ श्रीनगर में जो है ना सीमेंट इंडस्ट्री को, सीमेंट फैक्ट्री, नॉट इंडस्ट्री. सो व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस? इज इट पॉसिबल? सर शायद नहीं. व्हाई? सर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ओवर पॉपुलेटेड, या हम यूं कहें कि यहाँ पे ज्यादा अर्बनाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है. यहाँ पे आज उतनी जगह अवेलेबल नहीं है कि हम सीमेंट फैक्ट्री खोल सकें. हाँ, बेसिकली वंस वी टॉक अबाउट द सीमेंट फैक्ट्री, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करेंगे. शायद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस. ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यू. वी टॉक अबाउट नोटिफाइड एरियाज. आपका फॉर एग्जांपल आप कोई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल in Shalimar area, in Harwan area, particularly the foreshore road, it will not be possible.
It will not be possible because of the fact कि जो है कि वहां पे गवर्नमेंट ने पहले उसको नोटिफाई करके रखा है. वहां पे आप जो है वहां पे आप कोई यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते. इवन यू कैन नॉट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. So it is completely prohibited in that part of the this in that part of the we can say the Herwan area, Shalimar area, Nishat area. So that is completely prohibited. Even there were some people, some doctors, some famous doctors who are currently working abroad, and they wanted to start some hospitals in this part of the. Oh, so just a minute. So they just wanted to start their operations around this green belt, but they were stopped. So once you talk about such type of areas, or once you talk about the factors affecting the plant location, so government regulation can be one of the factor. Government regulation can be one of the factor. You getting my point? And then there are many other factors, primary factors and secondary factors. Primary factors, supply of raw materials. Supply of raw material कि ये भी है कि हम जो जहाँ पे हम स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होनी चाहिए. जब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगी, सो वहां पे एक जो है चार्जेस बढ़ सकते हैं रॉ मटेरियल को लाने के लिए, या डिफिकल्टीज बढ़ सकती है. तो इसीलिए फॉर एग्जांपल आपकी जो सीमेंट फॉर एग्जांपल है, सीमेंट फैक्ट्री है, मोस्टली दे आर टुवर्ड्स दिस साउथ एरिया, फॉर एग्जांपल क्रीमपापुर एरिया. तो वहां से जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वहां से आपको बहुत सारी जो उन्होंने फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज रखी है. इवन दे हैव केप्ट सेपरेट ग्राउंड, सेपरेट पार्किंग एरिया फॉर द ट्रक्स. हाँ जैद, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या कि सेपरेट जो है पार्किंग एरिया फॉर द ट्रक्स भी रखा है, which would not have been possible in श्रीनगर. मैं कहाँ से लाएंगे उतनी पार्किंग कि जो जितनी भी ट्रक्स है जो फॉर एग्जांपल क्रू एरिया का है उनको अलग रखा गया. मतलब जो आप ले लो कि जो एसपी कॉलेज का जो ग्राउंड है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का ग्राउंड तो छोटा पड़ जाएगा. सो हाँ, raw material availability of supply of raw materials again an important factor. Then the nearness to the market, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि nearness to the market, ये भी एक आपको जो है ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक कंपोनेंट है जो अफेक्ट कर सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या किसी जो है रिटेल आउटलेट को भी. फॉर एग्जाम्पल पिक एंड चूज ने अपना रिटेल आउटलेट लाल चौक में रखा है. सो इट इज वेरी क्लोज टू द मार्केट, क्योंकि लाल चौक का मार्केट जो है, आई मीन इट्स अ फेमस मार्केट, क्योंकि लोग बहुत जाते हैं, थे और आज भी जाते हैं. आई मीन we cannot basically rule out that people are not visiting Lal Chowk anymore. No, huge influx once you talk about the consumers visiting Lal Chowk. So nearness, कहाँ पे आप अपना जो है स्टोर, कहाँ पे आप रिटेल स्टोर, कहाँ पे आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये भी नियरनेस टू द मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कि क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है. आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो once you talk about the transport facilities, yes, in and out, inbound and outbound, याद रखिएगा. इनबाउंड फैसिलिटीज, आउटबाउंड फैसिलिटीज, मतलब हमें क्या है, हमें इनबाउंड फैसिलिटीज और आउटबाउंड फैसिलिटीज. तो अगर आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, आप मान लीजिए किसी फार फ्लंग एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं, then you need to have some transport facilities. The best example is Gurez. Gurez गया है कोई? Gurez कोई गया है? No, sir. Gurez is, I mean, it's a very difficult, journey once you talk about the Gurez. In fact, अभी जो उसकी जो बांडीपुरा साइड की, I mean, once you cross Bandipora, then
then starts the journey for Gurez. तो गुरेज में जो उसका रोड है कंप्लीटली डैमेज्ड, तो वहां पे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो वहां पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, इट वुड बी डिफिकल्ट। अगर आप सीमेंट फॉर एग्जांपल वहां पे हाँ वहां वो अपना कर सकते हैं, आई डोंट नो वेदर दे हैव स्टार्टेड और नॉट, लेकिन ओवरऑल कॉस्टली हो जाता है। अगर आपको वहां से मतलब कुछ भेजना है, गुरेज भेजना है, इट वुड बी अ कॉस्टली अफेयर, क्योंकि बहुत दूर है, और दूर होने के साथ साथ जो उसकी सड़क है मैक्सिमम जो उसके जो पार्ट्स है उस सड़क के वो खराब है, वो ठीक नहीं, वो डैमेज्ड है। सो once you talk about the transport facilities are again important. आपको लगेगा कश्मीर में, श्रीनगर में लगेगा कि भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या होता है, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, तो देन यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तब जाके आपको लगता है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कितना इंपॉर्टेंट है। जबकि फार फ्लंग एरियाज है जहां पे आप अभी गए नहीं होंगे, वहां पे जब जाते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फॉर अ रिटेल आउटलेट। तो आप किसी जगह पे मतलब कोई ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, दिस कैन नॉट बी वी कैन से द पोटेंशियल प्लांट लोकेशन तो वही होगा ना जहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगी। देन वी हैव लेबर सप्लाई। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे आपके पास लेबर भी होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल क्रू से ले लीजिए, मतलब आप श्रीनगर में स्टार्ट करेंगे, आप पुलवामा में स्टार्ट करेंगे, आप मान लीजिए बारामूला में स्टार्ट करेंगे जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वहां पे तो लेबर भी होना चाहिए ना, लेबर होना जरूरी है। तो अभी अगर आप देखेंगे, यू हैव मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम क्रू एरिया, इनफैक्ट आई कैन से मैक्सिमम फैमिलीज, दे हैव ट्रक्स विद देम, और जो फिर उसको सप्लाई करते हैं मैक्सिमम पीपल। तो यहाँ पे लेबर अगर उनके पास लेबर नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, या वहां से जो अंदर जो काम करना है वो कौन करेगा। So the availability of the labor is also important, and availability of power. तो ये भी एक फैक्टर है कि जो इम्पैक्ट करता है किसको, दी प्लांट लोकेशन को। सप्लाई ऑफ कैपिटल मतलब आपको मतलब कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है क्या, कोई आपको जो डिफरेंट क्वार्टर्स है, जो डिफरेंट एजेंसीज है, डू दे सपोर्ट यू। कैपिटल मतलब फाइनेंस, सिंपल आपके लिए याद रखना है। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि प्लांट लोकेशन कहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है।